নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ এবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলক উভতি ধৰিছে মুফতিয়ে মুফতিৰ মন্তব্য যে মুছলমানে কেৱল কুৰাণ আৰু হাদিছক মানি চলে তাৰ বাহিৰে বদৰুদ্দিন আজমলে হক নতুবা আন কোনোবাই হক কাৰো কথা মতে নচলে মুছলমান আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ যি মন্তব্য গৰু কুৰবানী দিব নালাগে বুলি যি মন্তব্য কৰিছিলে হে মন্তব্য বিজেপিৰ মন্তব্য বুলি আখ্যা দিছে মুফতি আৰু AIUDF দল বিজেপিৰ বি টিম আখ্যা মুফতিৰ হবিক জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক আজমল হক বা কোনোবা আলিমে হক কাৰো কথা মানি নচলে মুছলমানে আমি তেওঁলোকক অনুসৰণ নকৰো আমি কেৱল কুৰাণ আৰু হাদিছক মানি চলো 1400 বছৰ ধৰি কুৰাণ আৰু হাদিছক আমি মানি আহিছো আৰু মানি যাম তাৰ বাহিৰে কাৰো কথা আমি নামানো পৃথিৱী শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি কুৰাণ আৰু হাদিছকে মানি অতীজৰে পৰা আমি কুৰাণ আৰু হাদিছ মানি চলিছো আৰু মানি যাম আজমলৰ আহ্বানক লৈ মই সন্মত নহওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তথ্যপূৰ্ণ আহ্বানক আমি সন্মান জনাওঁ কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ আহ্বানক আমি মানি নলওঁ মুছলমানে কেতিয়াও আন ধৰ্মক অপমান নকৰে আইন আমি সদায় মানি চলি আৰু আইনৰ মতে কাম কৰি যাম কিন্তু কোনো আজমলৰ কথা আমি নুশুনো বদৰুদ্দিন আজমলৰ আহ্বানক আমি মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য হৈছে বিজেপিৰ মন্তব্য নবীয়ে কৈছে কোনো ধৰ্মকে আঘাত হানিব নালাগে কোনো ধৰ্মকে অপমান আৰু গালিগালাজ কৰিবলৈ নবীয়ে অনুমতি দিয়া নাই আমাৰ মজহবে এয়া অনুমতি দিয়া নাই ধুবুৰী জামে মছজিদৰ মুফতিৰ এই মন্তব্য মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ উভতি ধৰিছে এগৰাকী মুছলমান লোকে মুফতিয়ে উভতি ধৰিছে আমি ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো কিদৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ গৰু কুৰবানৰ যি আহ্বান আছিল গৰু কুৰবান নিদিবলৈ কৈছিল এই আহ্বানৰ পিছতে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলক উভতি ধৰিছে খুদ মুছলমান লোকসকলে আৰু মুফতিৰ স্পষ্ট মন্তব্য আমি অতীজৰে পৰা কেৱল কুৰাণ আৰু হাদিছক মানি চলি আহিছো আৰু মানি যাম কিন্তু কোনো আজমল নতুবা আন কোনো লোকৰ কথা আমি নুশুনো কেৱল মাত্ৰ আমি কুৰাণ আৰু হাদিছক মানি চলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তথ্যপূৰ্ণ আহ্বানক আমি সন্মান জনাওঁ কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথা আমি নামানো মুছলমানে কেতিয়াও আন ধৰ্মক অপমান নকৰে এই মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰী জামে মছজিদৰ এগৰাকী মুফতিয়ে আইন আমি সদায় মানি চলি কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ আহ্বানক আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো বিজেপিৰ বি টিম হিচাপে কাম কৰি আহিছে AIUDF এই অভিযোগ কৰিছে মুফতিয়ে আৰু নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আছে বুলিও অভিযোগ কৰিছে এতিয়া মুফতিয়ে এই মুহূৰ্তত মুফতিগৰাকীৰ মন্তব্য আছে কি কৈছে তেওঁ এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শকক और कौन क्या कहता है नहीं कहता इसमें हम कभी कितना भी बड़ा आलिम आ जाए हम उसको फॉलो नहीं करते हैं हम फॉलो करते हैं इस्लाम कुरान सुन्नत इसको फॉलो करते हैं कोई बदरुद्दीन आजमल है या कोई और बड़ा आलिम हो जाए वो बात कोई कह देगा अपील करेगा या कहेगा सख्ती से मैं मना करता हूँ कि गाय वगैरह ज़बर ना करो इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसी की इत्तेबा करते ही नहीं है किसी के पीछे चलते ही नहीं है हम तो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं बस उसी पर हम अमल करते हैं और करते आ रहे हैं 1400 साल से और आज भी कर रहे हैं क़यामत तक करते रहेंगे उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ बात दरअसल मेरी यही है उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ हमारे CM साहब ने एक ऐसे अंदाज में कहा कि उनकी बात मुझे अच्छी लगी जैसे भी हो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में कहा कि जो आइन है उसको फॉलो करो
जो आइन है वो हम फॉलो करते आ रहे हैं, मुसलमान के रग रग में है। जब से 1400 साल से हम दूसरों को तकलीफ ना हो ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। और इस वक्त भी जो आइन हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से पास किया जाता है उसको हम अब भी मानते हैं और मानते रहेंगे। ये हमारा मज़हब का तकाजा है। हम अल्लाह के नबी ने कहा कि किसी धर्म को नुकसान पहुंचाना, किसी धर्म को गाली देना, किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना, अगर हमारे किसी काम से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो हम उस काम से बाज आ जाएंगे, हम रुक जाएंगे। इसलिए हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। ये हमारा धर्म, हमारा मज़हब इजाज़त बिल्कुल ही नहीं देता है। हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने ये बात कहा, अगर मैं क्या बात कहूँ, मैं यूडीएफ के बारे में बिल्कुल ही मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। असल में इन्होंने बदरुद्दीन अजमल जो बात कही ये बीजेपी की तरफ से कही है। असल में यूडीएफ अगर सही माने में देखा जाए, जब से यूडीएफ आया तब से फितना है इस आसाम के अंदर। यूडीएफ का पैदा होना है कि मुसलमानों हिंदुओं के अंदर जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। इन्होंने एक पार्टी कायम कर लिया। ये मैं कहता हूँ कि यूडीएफ अगर देखा जाए ये बीजेपी का एक पार्ट है। उधर ओवैसी है और इधर बदरुद्दीन अजमल है जो मतलब ये आने की वजह से फितना कायम हो रहा है। ये बीजेपी का बी टीम है। यूडीएफ को वोट देना है तो उससे बेहतर बीजेपी को वोट दे दो, कि अंदर से क्यों दे दो, डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दो। यूडीएफ को क्यों दे दो? यूडीएफ को देना, बीजेपी को देना ही है तो हम डायरेक्ट बीजेपी को देंगे वोट, तभी अच्छा रहेगा। इसमें हमारा भी फायदा है। हम खामखा यूडीएफ को दे करके एक फितना कायम करते हैं। मैं सबसे यही अपील कर रहा हूँ, अगर देना ही है तो उसी को दो, अंदर बी टीम को क्यों देते हो? और अगर इससे कोई बेहतरीन कोई पार्टी है तो हम उसको देंगे वोट। लेकिन ये जो है ये रंग देने वाली पार्टी है। ज़बरदस्ती खाने के बारे में कोई ताकीद नहीं कि इस जानवर को खाना ही पड़ेगा। किसी किताब में नहीं, ना हदीस में है ना कुरान में है। किसी और धर्म में अगर देखा जाए तो बाज़ जानवर को नाम लेकर के, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, नाम ले करके उसमें जो है तस्करा है कि इन जानवरों को खाओ। लेकिन हमारे धर्म में तो है ही नहीं जानवर को खाना। हम तो ये जो जानवर ज़बह करते हैं ये हम सुन्नत इब्राहिमी है और हमारे मजहबी तकाजा है, हम करते आ रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि हम तो अगर पूरे साल आप जो कहते हैं हम पूरे साल नहीं खाएंगे, हम गाय के सामने ही नहीं जाएंगे, चलो। लेकिन जब मजहबी तकाजा आ जाता है कुर्बानी करना तो एक दिन के लिए इसकी इजाज़त होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, एक दिन के लिए कम से कम इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इलाके में, बंगाल के अंदर, आसाम में भी बाज़ इलाकों के अंदर इसकी इजाज़त मिल चुकी है, इजाज़त है। और बाज़ जगह इंडिया के बहुत सारे इलाकों में इजाज़त है। जब लॉ पास किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान का एक लॉ होना चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं किसी स्टेट के अंदर उसको जायज़ कर देते हैं, किसी स्टेट के अंदर उसको नाजायज़ कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लॉ होना चाहिए तो एक लॉ हो, हम मानेंगे और हमको मानना भी चाहिए। हम सब मानते हैं और मानेंगे भी, यही हम। और